Hello everyone, Namo Namaha. Let's begin with the lecture. Last time we have completed lesson number 10, Mama Shikshika. It is a part of writing skills. Now we have to start with the lesson number 9. That is actually a poem entitled as Vibhakti Mala. So students, we have already seen tables of Deva, Vana and Mala. From tables we know that there are total 8 Vibhaktis in Sanskrit, 8 cases. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोल्ड में लिखा हुआ है, ब्लैक बोल्ड कलर में, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी एंड सप्तमी, and last one is Sambodhanam. All these are vibhaktis. Today we are going to understand the application of vibhaktis in different shlokas. Also the last shlok is very important as all the vibhaktis are used in one shloka here in the last shlok. So you can observe there are total 8 black bold letters or 8 black bold words. So ये जो bold words है सब last में, all these are forms of different vibhaktis. So hence the title of the poem is Vibhakti Mala. Mala means garland. So this is a beautiful garland of a poetry giving you the application of all the vibhaktis. So quickly first start reciting all the shlokas. I will recite one shlok, then you have to give me oral, then second shlok, and so on. We'll move ahead. So please be attentive now, and also you have to take participation in orals too. So let's start with the first shlok. Dharmo jayati na dharmah, dharmo jayati na dharmah, satyam jayati na nrutam, satyam jayati na nrutam, kshama jayati na krodho, kshama jayati na krodho, devo jayati na surah, devo jayati na surah. Once again I am repeating full shlok. Dharmo jayati na dharmah, satyam jayati na nrutam, kshama jayati na krodho, devo jayati na surah. Yes. So who will recite it once again? Yes, Shreya, start reciting. Yes, ma'am. Dharmo jayati na dharmah, satyam jayati na nrutam, क्षमा जयति न क्रोधो, देवो जयति नासुरः. Pratama. Very nice. Very nice. Perfect. Then next. Yes, Krishna. Yes, ma'am. Start reciting first shlok. धर्मो जयति न धर्मः, सत्यम जयति न कृतं, क्षमा जयति न क्रोधो, देवो जयति नासुरः. Very good. Very good. Okay, students, now let's move ahead to the next shlok. We'll recite it also. Vasudeva sutam devam Kamsa Chanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnau Vande Jagadgurum. Vasudeva sutam devam Kamsa Chanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnau Vande Jagadgurum. As you can observe, I am saying Devaki Paramanandam Krishnau Vande Jagadgurum. Okay, and I think this is a known shlok. We have heard this shloka before in school also. Yes, so who will recite the same shlok, shlok number 2? Yes, Krishna. Ma'am, start. Yes. वासुदेवसुतं देवं कंसाचारणुमर्दनं देवकी परमानंदन कृष्ण वंदे जगद्गुरुम. Very good, very good. Yes, Aditya, can you recite the shlok? Aditya. Mehak. Yes, ma'am. Yes, recite second shlok. Start.
Mehak, please unmute yourself and start reciting second shlok. Yes, ma'am. वसुदेवसुतः देवः कंचानूरमर्दनं देवकी परमादनं कृष्ण वन्दे कंस चाणूरमर्दनम. कंसचानूरमर्दनं Wait. देवकी हाँ, एक बार मेरे साथ रिसाइट करो. वसुदेव सुतम देवम. वसुदेवसुतदेवम वसुदेव सुतम देवम. वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम. कंसाचानरुमर्दनं कंस चाणूरमर्दनम. कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम. देवकी परमानन्दं कृष्णौ वंदे जगद्गुरुम. कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं गुरुम. Ma'am, can you repeat what you said? कृष्णौ वंदे जगद्गुरुम. Krishna Vande Jagat Guru. Okay, very good. Thank you. Everybody please observe the screen and then recite shlok. Okay, now we'll move on to the third shlok recitation. काव्य शास्त्र विनोदेन. काव्य शास्त्र विनोदेन. कालो गच्छति धीमताम. कालो गच्छति धीमताम. व्यसनेन तु मूर्खाणां. निद्रया कलहेन वा. काव्यशास्त्र विनोदेन. कालो गच्छति धीमताम. व्यसनेन तु मूर्खाणां. निद्रया कलहेन वा. Yes. Yes, Shreya. Yes, ma'am. काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा. Very nice. Perfect. Yes, Deepika. Yes, ma'am. Third shlok. Okay, ma'am. काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति भीमतां वसने तु मूर्खाणां निद्राया कलहेन वा. Ma'am, Wow. last line pronunciation can you? मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा. Okay, मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा. Very good. Very good. Okay. Then yes, Krishna. Ma'am, can I start? Yes. काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यवसेनन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा. Very good. Very good. Now, students, आज हम 3 श्लोक को ही रिसाइट करेंगे और 3 श्लोक का ही अर्थ देखेंगे. So last time I'm reciting all the shlokas and then we'll move ahead to the translation part. धर्मो जयति नाधर्मः. सत्यम जयति नानृतम्. क्षमा जयति न क्रोधो. देवो जयति नासुरः. वसुदेवसुतं देवं. कंसचाणूरमर्दनं. देवकी परमानन्दं. कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्. काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्. व्यसनेन तु मूर्खाणां. निद्रया कलहेन वा. Okay, now we're going to understand these 3 shlokas today. And please remember, this Vibhakti Mala is very important poem. In semester 1 itself, you have to write down the translation of all the verses given in Vibhakti Mala. Also, the verses will be there for complete the verse question. Matlab starting and ending will be given. Dharmo dot nasurah, and you have to write down this shlokas. So हमें श्लोक की writing practice, oral practice भी करनी है. And also we have to practice some question answers and translation of all the shlokas from poetry.
तो पोएट्री का हमेशा याद रखना है कि देर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ पोएट्रीज टू स्टडी. We have to study the translation part, we have to study question answers, we have to study the complete the verse question for poetry, and also orals of poetry. Okay, so please pay attention here. Now we're going to understand the meaning of each and every word. Okay, now here we have first word dharmo jayati. अभी यहाँ पे ये जो वर्ड है धर्मो जयति, it is a sandhi. It is a sandhi. Sandhi means combined word. अभी ये न्यू टर्म है आपके लिए, पहली बार आप सुन रहे हो, मे बी आपने हिंदी में सुना रहेगा. संधि मतलब जॉइंट वर्ड्स या फिर कंबाइन वर्ड्स, कंपाउंड्स, सॉरी नॉट कंपाउंड्स, जॉइंट वर्ड्स और कंबाइन वर्ड्स. ना अभी ये जो संधिज है, मिक्सचर्स है वर्ड को, उसको कैसे हम स्प्लिट करेंगे वो देखना है. दो वर्ड्स ऑलरेडी हमें स्प्लिट दिख रहे हैं, धर्मो एंड जयति, बट देयर इज समथिंग which we have to change or modify in these words. So सबसे पहला जो वर्ड है धर्मो, that ends in o. Now I have to change it into ah. O changes to ah. So after dharmah, dharmo, I will give 2 dots. O बन गया ah. Dharmah plus jayati. My first sandhi is dharmah plus jayati. Okay. These two words are sandhis and I have written sandhi vigrah. इसको मैं क्या कहूंगी? Sandhi vigrah. So O changes to ah. O changes to ah. Dharmo changes to dharmah. Next word remains as it is. Dharmo plus dharmah plus jayati is my answer. So quickly open your notebook and just write down dharmo jayati is equal to dharmah plus jayati. Quickly write down dharmo jayati is equal to dharmah plus jayati. ओके डन. तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि राइट डाउन द संधि विग्रह, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया संधि विग्रह लिखो, तो आपको ऐसा आंसर लिखना है धर्मः प्लस जयति. एट द बिगिनिंग यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, बट प्लीज टेक सम टाइम. 2-3 और एग्जाम्पल्स होने दो, देन यू धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज संधि एंड व्हाट इज संधि विग्रह. ओके, सो फर्स्ट हमने सिर्फ इतना ही देखा है, धर्मो जयति इज अ कंबाइंड वर्ड. उसको हमने स्प्लिट किया, धर्मः अधिकम जयति. होप यू हैव रिटन इट. नेक्स्ट है नाधर्मः. इसके रूल्स एंड सब कुछ हमें नहीं है 8th स्टैंडर्ड में, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे. अभी आपको सिर्फ याद रखना है नाधर्मः. अगेन इसमें 2 वर्ड्स मिक्स है. तो पहला वर्ड है न. न मीन्स नॉट. संस्कृत में नॉट के लिए न बोलते. एंड नेक्स्ट वर्ड अगेन है अधर्मः. नेक्स्ट वर्ड इज अधर्मः. ओके, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे न में एक अ भी मिक्स हुआ था. न में एक अ भी मिक्स था, तो इसीलिए नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ. ये कैसा संधि है? तो बेसिकली इसमें क्या हुआ है, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ. ये रूल हमने मराठी और हिंदी में भी सुना है, अ प्लस अ बिकम्स आ. तो वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो, न एंड्स इन अ एंड नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ. न एंड्स इन अ एंड नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ, इसीलिए न प्लस अ बिकम्स ना. नाधर्मः. बट नाधर्मः में कितने वर्ड्स है? न अधिकम अधर्मः. न अधिकम अधर्मः. क्विकली राइट इट डाउन. न प्लस अधर्मः.
Okay, now we'll move ahead to the next संधि again. संधि का स्पेलिंग कुछ इस तरह से होता है. If you want to write down संधि, संधि means joint words, combine words. Okay, now next we have one more संधि, same as ये धर्मो जयति कैसे देखा हमने, वैसे ही अभी एक संधि सॉल्व करना है. क्रोधो देवो जयति, दिस इज अ संधि. संधि मतलब इसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं. अभी 3 वर्ड्स तो हमें पता है, क्रोधो देवो एंड जयति, ये 3 वर्ड्स है. कभी कभी संधि में 2 वर्ड्स आते हैं, कभी कभी 2 से ज्यादा वर्ड्स भी आ सकते हैं, 3, 4, 5. ओके, कितने भी वर्ड्स संधि में एक साथ आ सकते हैं. तो अभी यहाँ पे देयर आर 3 वर्ड्स, बट हमने यहाँ पे क्या किया था, डू यू रिमेम्बर, धर्मों का क्या हो गया था, धर्मः. वैसे ही अभी क्रोधों का हमें लिखना है क्रोधः, ओ चेंजेस टू अह, क्रोधः. देवों का भी क्या हो जाएगा बताओ, देवो विल चेंज टू देवः and plus जयति. So this is a big संधि विग्रह, क्रोधः प्लस देवः प्लस जयति, क्रोधः प्लस देवः प्लस जयति. अभी आपको कुछ भी रूल्स लर्न नहीं करने, बस समझ के लो कि व्हाट इज संधि एंड व्हाट इज संधि विग्रह. क्रोधो अगर हम यूज करेंगे ना, तो क्रोधो का मीनिंग नहीं है, क्रोधो ऐसा कोई फॉर्म नहीं है, बट क्रोधः इज अ सिमिलर फॉर्म लाइक देवः. हमें पता है कि मैस्कुलाइन जेंडर में हम बॉयज के नाम ऐसे ही बोलते हैं, रमेशः, सुरेशः, आदेशः एक्सेट्रा. हम कभी ऐसे नहीं बोलते आदेशो, रमेशो, राइट. तो वैसे यहाँ पे भी ओ को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज ओरिजिनल वर्ड्स आर डिफरेंट. क्रोधो चेंजेस टू क्रोधः, देवो चेंजेस टू देवः, अधिकम जयति. अधिकम मतलब क्या बोल रही हूँ ये मैं बार बार, दैट प्लस साइन मीन्स अधिकम. सो क्रोधः प्लस देवः प्लस जयति is my sandhi vigraha. Quickly write it down. Done? Now we'll move ahead to the next part. Next part we have to understand the meaning of each and every word. So first word is dharmah. Dharmah means righteousness. क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, विच इज अ राइट पाथ और विच इज अ नॉट, उसको हम कहते हैं धर्म एंड अधर्मः. सो धर्मः राइटियसनेस एंड अधर्मः अनराइटियसनेस. ये जो पोएम है इसमें हमें बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स भी मिलने वाले हैं. सो धर्मः मीन्स राइटियसनेस एंड अधर्मः उसका ही अपोजिट वर्ड हमने यहाँ पे देखा, न प्लस अधर्मः में अधर्म वर्ड था, तो अधर्म मीन्स अनराइटियसनेस, अनराइटियसनेस. देन हमारे पास और 2 वर्ड है, जयति एंड न. पहले हमने देखा धर्मः राइटियसनेस, अधर्मः अनराइटियसनेस. अभी न का मीनिंग होता है नॉट एंड जयति का मीनिंग होता है विंस. ओके, सो राइटियसनेस विंस एंड नॉट अनराइटियसनेस. ये तीन जो वर्ड्स है उसका मीनिंग क्या हुआ, राइटियसनेस विंस एंड नॉट अनराइटियसनेस. धर्म का विजय होता है, अधर्म का नहीं. ठीक है, आर यू गेटिंग मी. जयति का मीनिंग है विंस. हु विंस हियर, धर्मः. एंड किसका विजय नहीं होता है, अधर्मः. चलो अभी आपको जयति का मीनिंग पता चल गया है, तो जयति इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. जयति मीन्स विंस. कौन जीत रहा है कौन नहीं, ये हमें देखना है. नेक्स्ट है सत्यम जयति. सत्यम मतलब क्या, क्विकली टेल मी, यू नो दिस वर्ड फ्रॉम मराठी, हिंदी. सत्यम, truth, correct, very good students. Satyam means truth.
जयति मीन्स अभी अभी देखा हमने, क्विकली टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जयति? विंस, वेरी गुड। सो ट्रुथ विंस, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। Now what about this Nanrutam? Here also we have one sandhi like Nadharma. Okay, Nanrutam में again we have, yes right, वहां पे मीनिंग लाए होने वाला है, फॉल्स होने वाला है। बट अभी देखते हैं ये नानरुतम को सॉल्व कैसे करना है। तो जैसे नाधर्म को हमने सॉल्व किया न प्लस अधर्म, वैसे नानरुतम इज न प्लस अनृतम। ओके, अनृतम मीन्स झूठ, फॉल्स, lie. So quickly write down this also, न plus अनृतम। अब देख सकते हो न ends in a and next word starts with a, दोनों मिक्स हो गए थे इसीलिए यहाँ पे ना था। अभी हमने स्प्लिट किया न प्लस अनृतम। तो मीनिंग क्या हो गया? सत्य का विजय होता है, अनृतम का नहीं। अनृतम का म्हणजे असत्य का नहीं। अनृतम इज सेम एज असत्यम। ओके, सो इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे इसको? ट्रुथ विंस एंड नॉट फॉल्स। ट्रुथ विंस एंड नॉट फॉल्स और फॉल्सहुड। ओके, चलो नेक्स्ट, अभी हमें थर्ड पार्ट देखना है। क्षमा जयति न क्रोधः, यहाँ पे क्रोधो में हमने देखा था द ओरिजिनल वर्ड इज क्रोधः। सो क्षमा एंड क्रोधः बोथ आर द अपोजिट वर्ड्स। क्रोध मीन्स एंगर, क्षमा मीन्स फॉरगिवनेस। क्षमा मीन्स फॉरगिवनेस, किसी को क्षमा करना। यस, करेक्ट, टू फॉरगिव समवन। सो क्षमा इज फॉरगिवनेस एंड क्रोध इज एंगर। तो बताओ कौन जीतेगा इसमें से? ऑफ कोर्स क्षमा। सो फॉरगिवनेस विंस एंड नॉट एंगर। जो अच्छा है, सब पॉजिटिव है, वो जीतने वाला है, और जो निगेटिव सेंस है जहाँ पे भी, वो यहाँ पे हारने वाला है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो धर्म वॉज इन अ पॉजिटिव मैनर। सो धर्म विंस नॉट अधर्म, सत्य विंस नॉट अनृतम, क्षमा विंस नॉट क्रोध, क्रोध मीन्स एंगर। सो फॉरगिवनेस विंस एंड नॉट एंगर। जो भुला देता है वो जीत जाता है, और जो गुस्सा करता है वो हमेशा आग पीछे ही रहता है। एंड द लास्ट quotation from poet to all of us, देवः जयति नासुरः। अगेन देखो ये नाधर्मः, नानृतम ऐसे वर्ड्स ही आ रहे हैं ये श्लोक में। नेक्स्ट है नासुरः। नासुरः में वी हैव टू वर्ड्स, न प्लस असुरः, न प्लस असुरः। ये न मिक्स हो जाता है हर बार जब भी नेक्स्ट वर्ड वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हो न प्लस असुर, असुर मतलब डेमन, राक्षस। असुर राक्षस, डेमन, एंड न उसके साथ मिक्स हो गया था नासुर। बट हम लिखेंगे असुर इज राक्षस, नॉट नासुर इज राक्षस। राक्षस को क्या कहते हैं? असुर, डेमन। तो अभी मीनिंग क्या हो गया बताओ? देवः जयति न असुर, गॉड विंस एंड नॉट डेमन। गॉड विंस एंड नॉट डेमन। भगवान जीतते हैं, राक्षस नहीं। तो हमने टोटल 4 लाइंस देखे। क्या क्या मीनिंग है वो 4 पार्ट्स का? राइटियसनेस विंस एंड नॉट अनराइटियसनेस, ट्रुथ विंस एंड नॉट फॉल्स, फॉरगिवनेस विंस एंड नॉट एंगर, गॉड विंस एंड नॉट डेमन। एनी डाउट रिगार्डिंग फर्स्ट श्लोक? यस स्टूडेंट्स, क्विकली टेल मी। कोई वर्ड अभी आपको समझा नहीं है ऐसा है? हमने बहुत सारे संधिस देखे यहाँ पे। प्लीज थोड़ा, मतलब मुझे पता है सब नहीं समझेगा, थोड़ा बाउंसर जाने वाला है आज, बिकॉज फर्स्ट टाइम वी आर डीलिंग विद संधि। नो वरीज, जस्ट राइट इट डाउन। धीरे धीरे वही संधि जैसे जैसे रिपीट होने वाले हैं ना हर एक श्लोक में, देन इजीली आपको याद आ जाएगा कि ओ चेंजेस टू अह, न के साथ अ मिक्स हो जाता है। ये सब धीरे धीरे आप ही ऑब्जर्व करने लगोगे। सो जस्ट चिल, you will be familiar with sandhis very soon.
Okay, so now let's try some questions regarding first shloka and then we'll move ahead to the second. अभी फर्स्ट श्लोक सीखा है फ्रेश, तो उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स ट्राई करते हैं. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रथमांत पदानी लिखत. अभी जो हमने ये श्रेया, धर्म मीन्स राइटियसनेस. The spelling will be like this. Right का spelling RIGHT and then EOUS and then ness, righteousness. Okay, so RIGHT EOUS and NESS, righteousness. अच्छाई, धर्म मतलब your behavior, your good behavior, proper appropriate behavior. Okay, let's understand प्रथमांत पदानी लिखत. What is प्रथमांत पद? तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि this श्लोक is of प्रथमा विभक्ति. दिस श्लोक इज ऑफ प्रथमा विभक्ति. तो इसमें प्रथमा विभक्ति के हमने वर्ड्स देखे. वर्ड्स लाइक देवः, यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ड्स लाइक देवः. देवः, देवौ, देवाः प्रथमा हमने सुना था, तो प्रथमा विभक्ति में देवः आता है. तो देवः जैसे आज हमने बहुत सारे वर्ड्स सीखे. कैन यू टेल मी जो हमने संधि में लिखे हैं? जस्ट गो थ्रू दैट वर्ड्स, फाइंड आउट द वर्ड्स लाइक देवः या वनम या फिर माला, बट प्रथमा विभक्ति में होने चाहिए. एवरीबडी, डू यू रिमेम्बर द प्रथमा विभक्ति ऑफ एवरी टेबल? देवः, देवौ, देवाः प्रथमा, वनम, वने, वनानि प्रथमा एंड माला, माले, मालाः प्रथमा. तो हर एक जेंडर में प्रथमा विभक्ति के देयर आर 3 फॉर्म्स. वैसे कोई फॉर्म्स आपको सिमिलर फॉर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं क्या? तो यस, यू आर आंसरिंग करेक्ट. पहला श्रेया ने आंसर दिया है धर्मः. वेरी गुड. तो एक प्रथमांत फॉर्म है धर्मः. कैसे फाइंड आउट किया? बिकॉज इसके पीछे क्या है? विसर्ग है. सेम साउंड्स लाइक देवः. वेरी गुड. देन और एक फॉर्म है धर्मः के बाद देवः. देवः. वेरी गुड. आफ्टर दैट देवः जैसा ही साउंड करने वाला और एक वर्ड है, दैट इज असुरः. ये सब हो गए प्रथमांत पदानी, प्रथमा विभक्ति के शब्द. अभी बस इतने ही प्रथमा विभक्ति के शब्द है क्या? नहीं. तो क्षमा भी है. क्षमा साउंड्स लाइक माला, आकारांत शब्द, वो भी प्रथमा विभक्ति में है. सिर्फ देव जैसे फाइंड आउट मत करो, माला और वन जैसे भी फाइंड आउट करना है. ऑल्सो द वर्ड क्रोधः, क्रोधः is in prathama vibhakti. Okay, the word anrutam is in prathama vibhakti. It is like vanam, vanam, vane, vanani prathama, anrutam, anrutev, anrutam, anrute, anrutani prathama. Okay, so anrutam is also prathama vibhakti word. So in this manner you have to find out any 4 words for this question. तो अभी हमने 4 से ज्यादा वर्ड्स डिस्कस कर लिए. देवः, असुरः, क्रोधः, धर्मः, अनृतम, क्षमा एक्सेट्रा. चलो लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव जाल रेखा चित्रम पूरयत. देखो अभी आपको ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी एग्जाम में आने वाले. व्हाट इज जाल रेखा चित्र? सो डायग्राम इज गिवन, जिसको हम चित्र बोल रहे हैं यहाँ पे. एंड डायग्राम में जाल रेखा है. जाल रेखा मतलब कनेक्शंस है, कनेक्टिंग बॉक्सेस आर देयर, इसीलिए जाल रेखा. ओके, सो कनेक्टिंग बॉक्सेस को हमें समझना है, अंडरस्टैंड करना है एंड देन लिखना है. कैसे लिखेंगे? अभी ये आंसर्स मुझे ओरली चाहिए, सो प्लीज पे अटेंशन एंड देन आंसर मी. जयती लिखा हुआ है, तो हमें वहां पे ये 4 बॉक्स में ऐसी 4 चीजें लिखनी है या फिर ऐसे 4 गुण लिखने हैं, या जो भी आपने सीखा फ्रॉम श्लोक, ऐसे 4 वर्ड्स फाइंड आउट करो जो जीत रहे हैं. धर्मः जयति ना धर्मः, तो धर्म जीत रहा है, तो आपको यहाँ पे धर्म लिखना पड़ेगा. ऐसे 4 वर्ड्स फाइंड आउट करो हु आर विनिंग, जयति.
एंड नीचे आपको ऐसे 4 वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं who are not winning. न जयति. Okay. Yes. So who will tell me the answer for first? Yes, Shreya, you are answering correctly for the first one in chat box. Yes, Deepika, tell me the oral answers. Yes, ma'am. Ma'am, dharma. Ma'am, first box jayati. Answers dharma, satyam, shama, and devah. Very good, very good. Perfect. Thank you, ma'am. So students, if you have observed or heard Deepika correctly, Deepika said dharmah, devah, satyam and kshama. तो सब वर्ड्स जो है अलग अलग एंडिंग्स हमें दिख रहे हैं. धर्मः देवः अगर मैंने लिखा तो उसके एंडिंग में हमें क्या देना है, विसर्ग देना है. सी लाइक दिस, धर्मः देवः. ये दो आंसर्स है. तो पहले हम यहाँ पे दो आंसर्स लिखेंगे, धर्मः देवः. आफ्टर दैट दीपिका सेड सत्यम. ये सत्यम कैसे लिखना है, ऐसे जैसे आप फलम लिखते थे, फलम, नारंगम, कलिंगम, वैसे ये सत्यम, वनम जैसे. तो ये हमारा थर्ड आंसर हो गया. एंड लास्ट आंसर इज क्षमा, लाइक माला. सो दो दीज वर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट जेंडर. उनका विभक्ति एक ही है, सबका सबका विभक्ति प्रथमा है, बट फ्रॉम डिफरेंट जेंडर्स. I hope you are getting it. Now next, na jayati. Who will tell me the answer to na jayati? Yes, Shreya. Yes, ma'am. Hmm. Adharmah, Anrutam, Krodha, and Asura. Very good. Thank you, Shreya. I must appreciate Shreya that she has given all the answers correct. Pronunciations was great, as well as she has written all the answers in chat box with a Marathi words or Marathi script. So also the spellings are correct. That's great, Shreya. Keep it up. Okay, students. So you have heard the answer for न जयति. कौन कौन नहीं जीत रहा है हमारे श्लोक में? अधर्मः, अनृतम, क्रोधः and असुरः. Now we'll move ahead to the next shlok. So see, in this manner you have to study for each and every श्लोक. क्या क्या करना है, आप कभी भी श्लोक का पढ़ाई करोगे तो पहले read the श्लोक, then write it down. Writing practice is also important. Write it down just by seeing that श्लोक. दो पॉइंट्स हो गए, रीडिंग एंड राइटिंग द श्लोका. थर्ड पॉइंट इज read the translation and by heart it. Read the translation and by heart it. And then fourth point is solve the questions based on first shlok. In this manner you have to study any poetry of Sanskrit. Clear? Chalo, let's move on to the second shlok. Vasudeva Sutam Devam. अभी ये जो श्लोक है इसमें this is all the description about Lord Krishna. Yes, Shreya, you have to by heart this poem because आपको oral exams में भी होगा. अभी दो exams are going online and see, your school will tell you that this will be for written exam also. Prepare for both. Okay, so let's understand second shlok. Second shlok is about Lord Krishna. कृष्ण के बारे में, उसके लाइफ के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. And all the adjectives used here are for Krishna. Vasudeva Sutam Devam. Abhi Vasudeva is a name of Krishna's father. Vasudeva is name of Krishna's father. Sutam means son. Devam means Lord. So Krishna was son of Vasudev. Krishna was son of Vasudev. देन देवम मतलब वो लॉर्ड तो है ही, हम सबके लिए गॉड है कृष्णा, तो इसलिए नेक्स्ट वर्ड कृष्णा के लिए यूज किया है देवम. कंस चाणूर मर्दनम. अभी व्हाट इज दिस कंस चाणूर? कंस एंड चाणूर ऐसे जो डेमन्स है, ऐसे जो राक्षस है, असुर है, उनका वध भी करने वाला है. मर्दनम मतलब किलर. ओके, स्लेयर. The one who defeated Kansa and Chanura.
द डेमन्स लाइक कंस एंड चाणूर, उसको कहते हैं कंस चाणूर मर्दनम। मर्दनम मतलब सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में हम बोलेंगे तो मारने वाला, जिन्होंने ये दोनों का वध किया है, ऐसा कृष्णा। नेक्स्ट है देवकी परमानंदम। देवकी इज द नेम ऑफ कृष्णाज मदर। परमानंदम मतलब हैप्पीनेस, सो कृष्ण इज हैप्पीनेस ऑफ हिज मदर देवकी। नेम ऑफ द लॉर्ड इज कृष्णम, इसलिए वहां पे वर्ड यूज किया है कृष्णम। वंदे मीन्स आई सैल्यूट। किसको सैल्यूट कर रहा है पोएट? जगत गुरुम। जगत मीन्स वर्ल्ड एंड गुरु मीन्स प्रिसेप्टर। जगत मीन्स वर्ल्ड एंड गुरु मीन्स प्रिसेप्टर। सो पूरा मीनिंग कुछ इस तरह से हो गया, आई सैल्यूट द लॉर्ड कृष्णा who is son of Vasudev, then who is destroyer of demons like Kamsa and Chanura, who is happiness of Mata Devaki or Mother Devaki. That Krishna is also the preceptor of whole world. Okay, is there any doubt? Vasudeva, son of Vasudev, Devaki Paramanandam, happiness of Devaki, Kamsa Chanura Mardanam, destroyer of demons, Kamsa and Chanura, and Jagat Gurum, yani ki preceptor of this world. Who is he? He is Devam Krishnam, God Krishna. Vande matlab I salute that Lord Krishna who is all these. उसके लिए ये सब adjectives उसका description दिया हुआ है. And all these words are in द्वितीया विभक्ति, जैसे कि देवम, वसुदेव सुतम sounds like devam. Devam itself is there, which is द्वितीया विभक्ति from the table. Then Kamsa Chanura Mardanam sounds like devam again, so it is also द्वितीया विभक्ति. Yes, Shreya, correct. Then Devaki Paramanandam, again so this is also Ditya Vibhakti. Krishnam is also Ditya Vibhakti. Vande is Kriyapad, I salute. Vande is Kriyapad, so it is not Ditya Vibhakti, okay? And Jagat Gurum is also again Ditya Vibhakti. Now we'll move ahead to the question answer part. So first question, see, same question is asked here. Dvitiyanta Padani Likhata. So unmute yourself and quickly tell me Dvitiyanta Padani. Raise your hand. Yes, Shreya. Yes, ma'am. Vasudeva Sutam, Devam, Kaunsa Chanur Mardanam, Krishnam, Devaki Paramanandam, and Jagat Gurum. Very good, very good. Perfect. Thank you, Shreya. Thank you, ma'am. So students, you have observed all the words are ending in ma like devam. So isliye they are in Dvitiya Vibhakti. Now next, Subhashite Kriyapadam kim? Wow, this is a very perfect question and easy question. Subhashit में कौन सा क्रियापद है? Quickly tell me. Yes, Deepika, unmute yourself. Yes, ma'am. Subhashite Kriyapadam kim? Miss, ma'am, a sentence meaning. Well, what is a sentence meaning? सुभाषित मतलब श्लोक, क्रियापद मतलब verb, and किम मतलब what or which. What is a क्रियापद in श्लोक? Yes, ma'am. Kansa Chanu Mardanam. No. अभी अभी हमने देखा कि all these words ending in ma are adjectives, are describing words for Krishna. Only one word we have not seen. Okay. Ma'am, then Vasudev Sutam. Vasudev It is Sutam. again description of Krishna, na? See, I will tell you once again. Vasudeva Sutam Devam is again a description कि वो वसुदेव का पुत्र है. कंसा चाणूरा मर्दनम कि कृष्णा ने कंसा एंड चाणूर ऐसे राक्षसों को मारा है. देवकी परमानंदन वो देवकी का बेटा है और उसका आनंद है. और जगत गुरु वो पूरे जग का गुरु है, प्रिसेप्टर है. तो अभी इसमें
कौन से वर्ड्स बाकी है जो कि क्रियापद हो सकते हैं, एक्शन हो सकता है? मैम वंदे। वेरी गुड, वंदे। वंदे मातरम सुना है ना दीपिका? यस मैम। यस, तो वंदे मातरम मतलब वी आर सैल्यूटिंग आवर मदरलैंड, राइट? यस। Yes, likewise here we are saluting Lord Krishna. Very good, Deepika. You have tried it correctly. ओके। Okay, students. So always remember, Vande Mataram हम कहते हैं. There we are saluting our motherland. Likewise, Vande Jagadgurum or Vande Krishna means we are saluting Lord Krishna here. So Vande is our Kriya Pad. Okay, let's move ahead to the next point. Jalarekha Chitram Purayata. Jalarekha Chitram Purayata. And उसमें दिया हुआ है श्री कृष्ण. श्री कृष्ण सिंपल है, तो हमें 4 क्या लिखना है? श्री कृष्ण का डिस्क्रिप्शन लिखना है. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. श्री कृष्ण इज वसुदेव सुतः, कंस चाणूर मर्दनः, देवकी परमानंदः एंड जगत गुरु. अभी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो मैं जगत गुरुम, देवकी परमानंदम, वसुदेव सुतम, कंस चाणूरम मर्दनम ऐसे नहीं बोल रही हूँ. आई एम यूजिंग ह देयर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी मेरा वर्ड भी मॉडिफाई हो गया है. क्वेश्चन इज एंडिंग इन अह, हेंस माय जालरेखा चित्र शुड एंड इन अह. अह मींस विसर्ग. तो मेरे सब आंसर्स मॉडिफाई हो जाएंगे एंड वो कैसे दिखने लगेंगे? जगत गुरुहु. गुरुम विल बिकम गुरुहु. सब मैंने प्रथमा में मॉडिफाई कर दिया. व्हाई? बिकॉज मेरा जो क्वेश्चन वर्ड है श्री कृष्ण इज इन प्रथमा विभक्ति. ओके, चलो नाउ विल मूव अहेड टू द थर्ड श्लोक. काव्य शास्त्र विनोदेन. काव्य मीन्स पोएट्री, शास्त्र मीन्स स्क्रिप्चर्स एंड विनोद मतलब ह्यूमर. ओके, so kavya shastra and vinoda in means with all these things. कालो गच्छति. स्टूडेंट्स अगेन वो सेम संधि आ गया. देखो कालो गच्छति, जैसे धर्मो जयति वैसे ही कालो गच्छति. ओ चेंजेस टू अह. धर्मो का हमने धर्मः किया था, तो अभी कालो का क्या करेंगे? क्विकली टेल मी व्हाट विल बी द आंसर फॉर कालो. इफ धर्मो बिकम्स धर्मः देन कालो बिकम्स. वेरी गुड श्रेया, कालह. तो हमारा आंसर हो जाएगा टू दिस संधि इज कालह. कालह प्लस गच्छति. कालह प्लस गच्छति. क्विकली राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. Okay, so kavya shastra vinodena with poetry, scriptures and humor. Kalah gacchati. Gacchati means goes, passed away. Kalah means time. Dhimatam means of wise person, wise people. Okay, the time of wise people or intellectual people passes away with kavya shastra and vinoda, poetry, scriptures and humor or amusement, or amusements in poetic and scripture. मतलब वो पोएट्रीज कभी कभी पढ़ते हैं, कभी कभी डिस्कस करते हैं, और या फिर कभी कभी कोई शास्त्र के बारे में, जैसे कि साइंस है, डिफरेंट साइंसेस, सोशल साइंसेस एक्सेट्रा, इसके बारे में चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं. ये सब में अच्छे लोगों का, इंटेलेक्चुअल यानी कि होशियार लोगों का समय बीत जाता है. वो अपने टाइम का यूज इस तरह से करते हैं. बट अपोजिट बिहेवियर के लोग नीचे दिए हुए इन द सेकेंड लाइन. व्यसनेन तु मूर्खाणाम. व्यसन मीन्स एडिक्शंस, different bad addictions. मूर्ख मीन्स of course fools, fool people. मूर्खाणाम. उनका टाइम कैसे जाता है? एक तो व्यसनेन एडिक्शन, देन निद्रया just by sleeping, it is a waste of time, and कलहेन means quarrels, भांडणांमुळे.
ओके, झगड़ा करने की वजह से। तो हमने सेकेंड लाइन में देखा द टाइम ऑफ फूल पीपल passes away by addictions, by sleep or by quarrel. New words for you. Kavya Shastra Vinodena, amusement through poetry and scriptures. Dhimatam, intellectual people. Vyasana, addiction. Nidraya, by sleep. ये वर्ड हमने सुष्टु सॉरी ये वर्ड हमने देखा है पहले भी, निद्रा मतलब स्लीप. And then next we have कलह मतलब quarrel, झगड़ा. Okay, so these are the three verses from Vibhakti Mala. Now do you have any doubt regarding these three verses? कोई ऐसा word है जो miss हो गया है? You have not written a meaning of it. All the words are new for you. Okay, hope you understood all three verses. Now let's quickly complete the question answer series for third one. अभी देखो थर्ड श्लोक इज अबाउट तृतीया विभक्ति. तो उसमें क्वेश्चन पूछा है तृतीयांत पदानी लिखत. अभी तृतीयांत पदानी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? तो उसके लिए पहले देव का टेबल रिसाइट करना है. देव की तृतीया विभक्ति क्या थी? देवेन देवाभ्याम देवैहि तृतीया. ओके, तो अभी देवेन जैसे कौन कौन से वर्ड्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, चलो उसको हाईलाइट करते हैं. पहला है काव्य शास्त्र विनोदेन, जस्ट लाइक देवेन. Then है व्यसनेन, just like देवेन. And similar sound वाला और एक word है that is कलहेन. So all these three words are of तृतीया विभक्ति. Quickly write it down. काव्य शास्त्र विनोदेन, व्यसनेन and कलहेन. And why they are in तृतीया विभक्ति or they are similar like तृतीया विभक्ति? Because they are same or they are sounding same like देवेन. Endings are same like Tritiya Vibhakti. Hence, we have recognized it correctly. But there is one more word in Tritiya Vibhakti, and that word is Nidraya. Sounds like Malaya. हमने देखा है तृतीया विभक्ति में माला का टेबल कुछ इस तरह से होता है. मालया, मालाभ्याम, मालाभिः तृतीया. तो मालया जैसे दिख रहा है हमें वर्ड निद्रया, which is also in तृतीया विभक्ति. So हमारा फर्स्ट आंसर जो है तृतीयांत पदानी लिखत, उसमें हमें चार वर्ड्स मिले हैं. काव्य शास्त्र विनोदेन, व्यसनेन, कलहेन एंड निद्रया. नाउ नेक्स्ट समानार्थक शब्दान मेलयत. ओके, तो समानार्थक शब्दान मेलयत मीन्स सिमिलर वर्ड्स को हमें मैच करना है. सो कैन एनीबडी टेल मी द आंसर टू दिस? जस्ट ट्राई इट. आई विल हेल्प यू फॉर द meaning of each and every word. Yes, Deepika. Yes, ma'am. try this question. समानार्थक शब्दान. पहला वर्ड है विनोदः, मीन्स अम्यूजमेंट, एंटरटेनमेंट. तो उसके लिए वर्ड दिख रहा है आपको कोई? मैम मनोरंजनम. वेरी गुड, परफेक्ट वर्ड, मनोरंजनम. चलो नेक्स्ट वर्ड अभी मूर्ख. मूर्ख तो आपको पता है फूल. यस तो वैसा ही कोई वर्ड दिख रहा है आपको? मैम लास्ट वर्ड वेरी गुड, परफेक्ट. मूढ़ः, करेक्ट आंसर. You are going good, Deepika. Third one, nidra. Nidra means sleep. शयनम. Very good, shayanam. And the last is vyasanam means durabhyasah. मैम दुरभ्यास मीनिंग? Meaning same, addiction, गलत चीजें, bad habits. तो स्टूडेंट्स ये जो वर्ड है दुरभ्यास, हम अभ्यास वर्ड सुनते हैं. अभ्यास मतलब डेली प्रैक्टिसिंग, एंड दुरभ्यास मतलब बैड हैबिट्स. जो गलत चीजें हैं उनका रोज प्रैक्टिस करना, दैट इज दुरभ्यास. बट अच्छी चीजों का, अच्छे
लेसन्स का या स्टडीज का प्रैक्टिसिंग इज अभ्यासः, दुरभ्यास इज बैड प्रैक्टिसिंग, बैड हैबिट्स, एडिक्शंस एक्सेट्रा. निद्रा शयनम यानी कि स्लीप, मूर्खः मूढ़ः सिमिलर वर्ड्स is nothing but fool, and vinodah manoranjanam is entertainment, amusement. Okay, last question. एकवाक्येन उत्तरं लिखत. धीमतां कालः कथं गच्छति. धीमतां मतलब इंटेलेक्चुअल पीपल, उनका टाइम कैसे स्पेंड होता है. एंड सेकंड क्वेश्चन देखो, मूर्खाणाम कालः कथं गच्छति. तो पहले लाइन का आंसर हमें पहले क्वेश्चन के लिए लिखना है, सेकंड लाइन का आंसर सेकंड क्वेश्चन के लिए लिखना है. ये श्रेया फर्स्ट क्वेश्चन. मूर्खाणां कालः कथं गच्छति. सॉरी, Yes, ma'am. धीमतां कालः कथं गच्छति. धीमतां कालः काव्यशास्त्रविनोदे अस्ति. Very good, perfect answer. Thank you, Next ma'am. question. मूर्खाणां कालः कथं गच्छति. Yes, Deepika. Yes, ma'am. मूर्खखाना काल व्यसनेन आणि व्यसनेन निद्राया गच्छति. Very good. And कलहेन, कलह. झगड़े भी करते हैं ना वो. मैम, Yes. मैम इन संस्कृत Yes, Deepika. मैम in Sanskrit what we call or, in Hindi we can call or, what we call in Sanskrit. और else ऐसे बोलना है आपको. Yes. उसके लिए Means, संस्कृत में वर्ड when- है वा. Wow. Okay. वा, only वा. Yes, वा means or. Okay. Thank you, Deepika. Yes. Okay students, so here we have completed 3 shlokas from Vibhakti Mala. जैसे कि अभी दीपिका ने पूछा, there is one word va which we used in Sanskrit for or. Okay, this or this, ऐसे जब हमें चॉइस करना है टू ऑप्शंस में तो हम va यूज करते हैं. एक और वर्ड है च. च मीन्स एंड. च मीन्स एंड. va मीन्स और, च मीन्स एंड. एंड आज ही हमने सीखा न. न मीन्स नॉट. तो ऐसे एक एक लेटर के भी वर्ड्स होते हैं और उसका भी मीनिंग होता है. वा मीन्स और, च मीन्स एंड न मीन्स नॉट. प्लीज नोट इट डाउन. Va or, ch and न not. Okay students, so on this note we'll stop here. We'll continue with this Vibhakti Mala tomorrow in the next lecture. Thank you so much everyone. Bye. Punarmilamah. Take care everybody. Bye.